incidents in 3 graves he saw. So he says, once when I dug a grave, I saw a heart-trembling scene. I saw a person whose face had become black. His hands and feet were tied with chains of fire. And there was pus and blood coming out of his mouth. As well as this, there was an extremely bad smell. I was about to run away when the dead person suddenly spoke and said, "Why do you run away? Stay here and listen to why I have received this punishment." When I heard this, I decided to wait and listen. But I was very scared. I gathered all my strength and went near the grave. When I looked inside the grave, I saw that the angels of punishment had tied a chain of fire around his neck. I asked the deceased, "Who are you?" He replied, "I am a Muslim and the son of a Muslim. Yet, unfortunately, I used to drink alcohol and commit adultery. I died in this state and am now stuck in the punishment of Allah Azza wa Jal." The shroud thief then continued his story. Another time, when I opened a grave, I saw a black person who stood up with his tongue hanging out. He was surrounded by flames. The angels were standing with chains around his neck. When this person saw me, he cried out, "Brother, I am extremely thirsty. Please give me some water." The angel said to me, "Beware, this person did not perform his salah," meaning his prayer, his namaz. "Don't give him any water." I gathered my strength and asked the dead person, "Who are you and what sin did you do?" He replied, "I was a Muslim. However, unfortunately, I had disobeyed Allah Azza wa Jal many times, and like me, there are many sinners who are trapped in the same punishment in this graveyard." The shroud thief then continued, "Once I opened a grave and noticed a most amazing scene. Subhanallah. The grave was extremely spacious and there was a beautiful garden inside the grave. Subhanallah. There were many streams flowing inside the garden, and there was a young man in the garden who was enjoying all of this. Subhanallah. I asked the young man, "What action did you perform for which you have received this reward?" He replied, "I once heard a speaker saying that whoever offers 6 rakat of nafal salah on the day of Ashura, he would be forgiven." Subhanallah. Therefore, every year I used to perform these 6 rakat nafal salah on the day of Ashura. For this, Allah Azza wa Jal forgave me. Subhanallah. मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि जो अल्लाह ताला की इताअत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर कैसा करम फरमाता है। इसी तरह एक बार खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स घबराया हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा, "आलिजा, मैं बेहद गुनाहगार हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए मुआफी भी है या नहीं।" खलीफा ने कहा, "क्या तेरा गुनाह जमीन व आसमान से भी बढ़कर है?" उसने कहा, "हाँ हाँ, मेरा गुनाह इससे बड़ा है।" खलीफा ने पूछा, "क्या तेरा गुनाह लोहो कलम से भी बड़ा है?" जवाब दिया, "इससे भी बड़ा है।" पूछा, "क्या तेरा गुनाह अर्श कुर्सी से भी बड़ा है?" जवाब दिया, "हाँ, मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है।" खलीफा ने कहा, "भाई, यकीनन तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता।" ये सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफान
आंखों के जरिए उमड़ आया और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। खलीफा ने कहा, भाई आखिर मुझे पता भी तो चले कि तुम्हारा गुनाह क्या है। उस पर उसने कहा, हुजूर मुझे आपको बताते हुए बेहद शर्म आ रही है, लेकिन मैं अर्ज किए देता हूँ, शायद मेरे अर्ज करने पर मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, आलिजा, मैं एक कफन चोर था, यानी शराब थीफ था। आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हुआ। अल्लाह चुनाचे कफन चुराने की गरज से मैंने जब पहली कब्र खोदी तो मुर्दे का मुंह किबले से फिरा हुआ था। मैं खौफजदा हो गया, डर गया, और मैं जो ही डर कर पलटने लगा, एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, इस मुर्दे से अजाब का सबब तो दरियाफ्त कर लो। मैंने घबरा कर कहा, मुझे हिम्मत नहीं, मैं बहुत डर रहा हूँ, तुम ही बता दो। आवाज आई, ये शख्स शराबी और जानी था। इसी तरह जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल हिला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का मुंह खिंजीर जैसा हो चुका है और तौक और जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज आई, ये शख्स झूठी कस्में खाता और हराम रोजी कमाता था। जब मैंने तीसरी कब्र खोदी तो इसमें भी एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी की तरफ जबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें झुकी हुई थी। गैबी आवाज ने बताया, ये गीबत करता, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, इससे भी दर से इबरत हासिल कीजिए। पता चला कि अजाब कब्र की कुछ रीजंस जो हमारे सामने आई हैं, उनमें एक रीजन गीबत करना भी है, दूसरी चुगली खाना भी है और लोगों को आपस में लड़वाना भी है। यानी इधर की बात सुनी, दूसरों को बता दी कि वो तुम्हारे बारे में ये कहता है। ये क्या है? चुगली खाना। और प्यारे इस्लामी भाइयों, चुगली की वजह से बेशुमार मुसलमान एक दूसरे से नफरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तमाम गुनाहों से बचते रहें। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, एक रिवायत में आता है कि आज की रात यानी 15वीं शाबान को हर शख्स की बख्शिश हो जाएगी, सिवाय कुछ लोगों के। और उन कुछ लोगों में कौन होंगे? उन कुछ लोगों में शराबी। अभी हमने सुना कि शराब पीने वाले के बारे में किस कदर अजाब है, कि कब्र के अंदर उसे कैसी कैसी सजाएं दी जा रही हैं। आइए आज हम यहाँ पर हाजिर हैं, आज सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि अगर आज से पहले खुदा न खास्ता हमने कभी शराब को हाथ लगाया था तो आज सच्ची तौबा करते हैं। क्यों? कि प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं, हमारे गिर्द कब्रें हैं। इन कब्रों में जो आज मदफून है, यही कल जमीन पर चल रहे थे। यही लोग बड़े फख्र के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब इनका वक्त आ गया, मौत ने इनको उचक लिया और उठाकर अंधेरी कब्र में डाल दिया। इनको भी मालूम ना था कि अचानक हमारी मौत आ जाएगी। इसी तरह जिस तरह आज हमें भी मालूम नहीं है, हम भी नहीं जानते कि हम में से कोई यहां से उठकर जाएगा या नहीं। हम नहीं जानते। आज हम ऐश कोशियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम नमाजें कज़ा कर रहे हैं, आज हमारा नौजवान शराब और रुबाब की महफिलों में जिंदगी गुजार रहा है। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, डर जाइए। अगर अचानक मौत ने आ लिया, तौबा करने का मौका भी ना मिला तो क्या करेंगे? अगर अचानक मौत आ गई और इसी हालत में बगैर तौबा के इस दुनिया से चले गए तो कब्र के अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे।